So technique examples. Here the another example is there. The mean, mode and median. Next question is there. The mean, mode and median of the observation ऑब्जर्वेशंस दिए वाले हमको 7, 7, 5, 7 and x are the same. Okay, then the observation x is. So options also are there. First option is 10, second 9, third 8 and last one is 7. So see that what is the question? The mean, mode and median of the observations दिए वाले हमको 7, 7, 5, 7 and x, okay, are the same. So what is same here? The values of these all observations having their mean, mode and medians are the same. Okay, अगर हम लोग ए 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशंस का अगर हम लोग मीन निकालेंगे, मोड निकालेंगे और मीडियन निकालेंगे तो ये तीनों का भी आंसर क्या है बोले उन्हें? सेम है बोले, ये हमको दिया वाला है. ओके, सो इट इज गिवन दैट द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दिस 5 observations are same. Okay, so what we have to now find out, then the observation x is. So then what is the observation of x is? अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू ये 4 ऑप्शन में से क्या रखेंगे जिसके ऊपर से हम लोग अगर मीन, मोड एंड मीडियन निकालेंगे तो तीनों का भी आंसर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. हमारा क्वेश्चन है. सो ऑल ऑफ यू गॉट दिस. व्हाट इज योर क्वेश्चन? ओके, नाउ वी विल फाइंड द आंसर. सो सी हियर. सो हाउ टू फाइंड द आंसर्स? So definitely we have to calculate the value of x. So how to find the x? If we take the average of this all 5 observations, we'll get the one unknowns. Okay, and how to find the unknown? We can easily find the unknown by using the mode. Okay, so in the last lecture we seen that what is mean by mode. Mode is nothing but the most frequently occurrence of a number is called mode. Okay, so see here, first of all I will find mode. Okay, so see here. So all of you know that mode is the most frequently occurrence of a number. So कितने नंबर है हमारे पास? 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 नंबर में सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है? अभी सब लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है? x है. ओके, सो x की जगह कौन सा नंबर पकड़ेंगे? डेफिनेटली आप कौन सा पकड़ सकते हैं? आपके पास तो ऑप्शन भी है अवेलेबल. सो इसमें से कोई ना कोई एक होगा. ओके, चलो देखो, अगर समझ लो ये 10 है, 9 है, 8 है, 10 है, इसमें से कोई भी नंबर रखेंगे तो मोड क्या है? जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोड बोलते हैं. ओके, सो सी हियर, यहाँ पे तो दिखते ही आपको क्या दिख रहा है? देखो कौन से नंबर है? 7 है, 7 है, 5 है, 7 है और ये लास्ट वाला नंबर जो x है, x के जगह कोई भी नंबर रखे तो भी सबसे ज्यादा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा? 7 है. कितने टाइम्स आ रहा? 3 टाइम्स, तो 7 ही आ रहा. ओके, हम समझ लेते ये 7 यहाँ पे नहीं भी आया, इसमें से कोई भी एक आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, फिर भी सबसे ज्यादा बार कौन सा रिपीट हो रहा है? 7. सो डेफिनेटली द मोड ऑफ दिस 5 ऑब्जर्वेशंस इज 7. ओके, सो आई विल गेट द वन आंसर, दैट इज मोड इज इक्वल टू 7. सो the value of mode is equal to 7. So what is the given? The mean, mode and median of the observations are same. Okay, अगर mean, median, mode same है तो we can say that the mean is equal to mode is equal to 7. Okay, now we got the values of mean also 7. Okay, so all of you know that how to calculate the mean of the 5 observations. See here, so we have the formula for calculating mean is equal to, कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास? 5 है. x1 प्लस x2
plus x3, x4, x5. So x1 to x5 are the observations. Okay, so divided by the number of observation. How many numbers of observations are there? 5 observations. Okay, so now put the value of mean. Mean is equal to 7 is equal to, now what is the value of x1? The first observation, 7 plus 7 plus third observation is 5 plus fourth one is 7 and last one is x divided by number of observations are 5. Okay, so we can easily calculate here the value of x. Now count at all numbers. 7, see here, ये 5 कहाँ पे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इधर आके क्या जाएगा, न्यूमरेटर में अगर उनको भेजना है या ये साइड पे तो क्या जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. ओके, सो सी हियर 7 7 3 are 21 plus 5 26 plus x. What is the remaining? 26 plus x. Okay, so 7 3 are 21 plus 5 is 26. Now ये 26 है और ये क्या है, 7 5 are 35. So 35 माइनस ये 26 को ये साइड पे लेके आए तो क्या जाएगा, माइनस में चला जाएगा, क्या बचेगा उधर, x ओनली. सो सी हियर 35 माइनस 26 is the value of x. So what is 35 minus 26? See here, 4 plus 5 is 9. So the value of x is 9. So see here the option number B having the value is 9. So we can easily find out the value of x like that. Okay, so क्या किया हम लोगों ने, मोड हमको इजीली पता चला, यहाँ से जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है मोड लिए, हमको दिया वाला है मीन, मोड इज इक्वल है बोल के. ओके, सो हम दोनों को इक्वेट कर दिए, हमको क्या मिला, मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू 7. देन हम लोगों को क्या निकलना था, x का वैल्यू निकलना था, तो हम लोगों ने इसका मीन ले लिया 5 का. सो 5 ऑब्जर्वेशंस का अगर हम लोग मीन लेते हैं तो हमको क्या मिला, एक अननोन था इसके अंदर x, बाकी सब हमारे पास गिवन था, तो इसको जस्ट रीअरेंज कर दिए और क्या किया हमने, वैल्यू फाइंड किए. सो ऑल ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट. ओके, सो नाउ टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम. द मीन ऑफ A, B, C is capital M and AB plus BC plus CA is equal to 0, then the mean of A square comma B square comma C square is. ऑप्शंस दिए वाले आपको. फर्स्ट ऑप्शन इज 5m square, सेकेंड ऑप्शन इज 3m square, third option is m square and last one is 9m square. So first of all see what is given. Okay, so see here, so what is given, if the mean of the ABC are the observations here. Okay, so mean of the observation ABC is m. आपको दिया वाला है डायरेक्टली, यहाँ पे मीन किसका दिया वाला है, ये 3 ऑब्जर्वेशन का अगर हम लोग मीन निकालेंगे तो कितना दिया वाला है हमको, m दिया वाला है. और साथ में क्या दिया वाला है आपको, द वैल्यू ऑफ AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 0. देखेंगे ये कहाँ ना कहाँ तो लगने वाला है हमको. ओके, क्यों, क्योंकि हमको क्या निकालने का है, यहाँ पे देखो द मीन ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर निकालना है. सो देखेंगे वो कहाँ पे लगता है वैल्यू, हम लोग देखेंगे अभी. ओके, सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है, अभी देखो इसका मीन निकालेंगे, पहले हमको जो दिया वाला है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे. ओके, सो क्या दिया वाला है हम लोगों को, सी हियर द मीन ऑफ ABC इज m. सो ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज द मीन. Mean is the sum of all observations divided by number of observations. Okay, so यहाँ पे mean क्या दिया वाला है, x बार, sum means addition of these 3, A plus B plus C, कितने ऑब्जर्वेशन है,
3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? 3। ये मीन कितना दिया हुआ है हमको? यम। सो यहाँ पे क्या मिल गया हम लोगों को? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 times of yum. Okay, so all of you got this. What is the given? We have the value of a plus b plus c is equal to 3m. Okay, and also we have the value of ab plus bc plus ca is equal to 0. This is equation number 2. Okay, so now focus. What we have to calculate? See here, we have to calculate the mean of a square plus b square plus c square. अगेन कितने हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3. ओके, 3 लोगों का हमको क्या निकालना है? ऑब्जर्वेशन निकालना है. ओके, सो सीयर हम लोग क्या करेंगे? अभी इसका मीन का फार्मूला लिख देंगे. सो मीन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर का मीन कैसे निकालेंगे हम लोग? उसका सम करो. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है? 3. ओके, सो अगेन ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे पास? 1 2 3. सो डिवाइडेड बाय 3. नाउ सी हियर हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ओके, अभी अगर हमको इसका वैल्यू मिल गया तो डेफिनेटली हम लोग क्या कर सकते हैं? ये मीन वैल्यू पता करके इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो देख सकते हैं. सो डेफिनेटली देखो यहाँ पे सबके सब ऑप्शंस किस में है? यम में है, यम स्क्वायर में है. ओके, सो इसके साथ कोई कोएफिशिएंट भी है. सो डेफिनेटली हमारे पास यम में रहने वाला क्या है? a प्लस बी प्लस सी है. इसके ऊपर से हमको कुछ ना कुछ मिलने वाला है. अभी देखो यहाँ पे अगर आप लोगों को सॉल्व करना है तो एक आइडेंटिटी देखना पड़ेगा. सो यहाँ पे कितने आइडेंटिटीज है हमारे पास? कितने ऑब्जर्वेशन है? ए बी सी 3 है. सो इसकी एक आइडेंटिटी है. कौन सा है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. सो हाउ टू कैलकुलेट a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर? हियर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू. सो क्या है इसका आइडेंटिटी? बोलिए. फर्स्ट का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए. ओके, सो व्हाट इज आइडेंटिटी? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB, BC and CA. Okay, so what is our need? So we need the value of a square plus b square plus c square. कहाँ पे है? यहाँ पे है. तो हम लोग क्या करते हैं? ये जो ब्रैकेट है ये साइड पे भेज देते हैं. So from this equation we'll get a square plus b square plus c square is equal to a plus b plus c whole square minus of 2 times of AB, BC plus CA. Okay, so now see here, instead of writing a square plus b square plus c square, we put here the values a plus b plus c whole square minus 2 times of AB, BC and CA. So divided by here 3 as it is. Divided by 3 as it is. Now see here, from equation 1 we have the values of a plus b plus c is equal to 3m, and from equation 2 we have the value of ab, bc and ca is 0. Okay, so now put the values of this bracket and this bracket from equation 1. So I'm just simply write here from equation 1 and equation 2. So from equation 1 and equation 2 we'll have the values of mean इज इक्वल टू सी हियर a प्लस बी प्लस सी की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? इक्वेशन 1 में से 3m. सो 3m यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर है, यहाँ पे भी मैं स्क्वायर लेता. सो 2 इंटू द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम इक्वेशन 2 इज 0 एंड डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज. ओके, सो नाउ टेल मी व्हाट इज द 3m स्क्वायर? 3 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर डिवाइडेड बाय. सो ये 3 है एज इट इज और ये कहाँ पे गया? 2 इंटू 0. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0. सो एनीथिंग माइनस 0 इज सेम. ओके, सो नाउ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. सो व्हाट इज रिमेनिंग? 3m स्क्वायर. ओके, सो
see in the option number second having the values 3m square. So option number second is the right answer. Okay, so देखो फिर से एक बार बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने ये प्रॉब्लम. ओके, सो क्या किया हम लोगों ने, हमारे पास क्या था, द मीन ऑफ एबीसी एम दिया था. सो मीन अगर एम दिया था हमको, कितने ऑब्जर्वेशन था यहाँ पे, 3 ऑब्जर्वेशन था. 3 का मीन क्या दिया था हमको, एम दिया था. सो हम लोगों ने जस्ट मीन का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 3 इज इक्वल टू एम दिया वाला है हमको. ये 3 यहाँ पे डिवाइडेशन में था, उधर जाके कहाँ गया, वो मल्टीप्लीकेशन में चला गया. राइट है. सो देखो यहाँ पे हम लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, बाद में सेकंड में हमको ये ऑलरेडी दिया वाला है, द वैल्यू ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए इज इक्वल टू 0. ओके, सो again what we have to calculate the mean of a square, b square and c square. Okay, so just write here the formula of mean. So mean again the sum of all observation, again we have 3 observations. right है. so 3 observations का addition किया, divided by number of observation 3 है. okay, so ये हो गया आपका फार्मूला. so again हम लोगों को इसका वैल्यू मालूम नहीं था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, तो उसके लिए हम लोग ये आइडेंटिटी यूज किए, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ए. ये 2 को हम लोगों ने कॉमन निकाल के ऐसा लिख दिया. ओके, सो हमको होना क्या है, फिर से वहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू होना था, तो हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये साइड पे रख दिया, और ये एज इट इज लिख के इसको क्या किया, ये साइड पे भेज दिया. तो हम लोग क्या होगा, वो प्लस का क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, और ये जो वैल्यूज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का उठाए हम लोग ने यहाँ पे रख दिया. सो यहाँ पे रखने के बाद हम लोग क्या किए, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से इनका जो भी वैल्यू है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू था 3m, यहाँ 3m ला के रख दिए, और ए बी बी सी और सी ए का वैल्यू क्या था 0, यहाँ पे 0 रख दिए. सो क्या हो गया, 3m स्क्वायर का हो गया 9m स्क्वायर, और माइनस 0 तो नहीं लिख दे हम लोग यहाँ पे क्योंकि उसका वैल्यू क्या है 0 है. ओके, डिवाइडेड बाई 3 का एज इट इज. सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. सो क्या बचा हमारे पास 3m स्क्वायर. तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट. ओके, सो नाउ सी हियर. Now take another examples. Yes, write down, if the mean of six, 7, 8 x y 14 is 9, then इक्वेशन दिए वाले आपको ऑप्शन में x प्लस y is equal to 21, second is there x minus y is equal to 19, थर्ड वन है x plus y is equal to 19, and last option is there x minus y is equal to 21. so simple question है, क्या पूछा वाला है देखो क्वेश्चन एक बार. if the mean of किसका किसका मीन निकालना है हमको, 6 7 x 8 y 14, कितने ऑब्जर्वेशन है देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन का मीन हमको दिया वाला है, कितना है 9 है. तो ये जो ऑप्शंस है, ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है वो आपको बताना है. राइट है. सो ऑल ऑफ यू गॉट दिस. व्हाट इज क्वेश्चन, वी हैव द मीन ऑफ दिस 6 ऑब्जर्वेशन इज 9. सो देन इसमें से कौन सा इक्वेशंस ये ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से सही है वो हमको बताने का है. ओके, सो सी हियर what we have the mean of these 6 observations. So first of all we'll move towards the mean. So again mean is the sum of all observations divided by number of observations. Okay, so what is sum of all observations, 6 observations है हमारे पास. so 6 observations का sum लेते हैं हम लोग फर्स्ट. okay, so क्या है observations, 6 plus 7
प्लस एक्स प्लस 8 प्लस वाई एंड 14. ओके, डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6 हियर. सो हमको दिया वाला क्या है, द मीन ऑफ द 6 ऑब्जर्वेशन इज 9. सो ये मीन की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 9. अगर हम लोग इसका सम करेंगे तो सम कितना आता है देखो यहाँ पे. सो 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 8 21, सो 25 प्लस 35. ओके, सो हो गया क्या ये 35 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 6. सो 35 हो गया क्या, देखो एक बार फिर से क्या किया हम लोगों ने, 6 प्लस 7 13 हो गया. ओके, 13 प्लस 8 21 हो गया. ओके, एंड इधर 4 अगर डाल दिए तो 25 प्लस 10 डाल दिए तो 35 प्लस एक्स एज इट इज वाई एज इट इज डिवाइडेड बाय 6. ओके, सो ये जो 6 है यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में, इधर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. ओके, डिवाइडेशन इनटू मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 35 प्लस एक्स प्लस वाई. ओके, सो नाउ 6 9 जा 54 सॉरी 35 प्लस एक्स प्लस वाई. ओके, नाउ ये देखो ये 35 यहाँ पे प्लस में है, अगर ये साइड पे लेके आ जाएंगे किस में जाएगा, माइनस में चला जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 54 माइनस 35, काउंट करके देखो कितना होता, 19 होता, x प्लस वाई बराबर है ये 54 माइनस 35 कितना हो गया, 14 में से 9 गया, 5 गया, 9 बच गया, यहाँ पे दे दे 1 दे दो. ओके, सो 54 माइनस 35 is 19. So see in the options, so would we have x plus y is equal to 19. So where is the option, x plus y is equal to 19 is option number 3rd. So third option is right. So all of you got this question. So how to calculate this values, x plus y is equal to 19. We have the mean of this 6 observation is 9. Just take the mean of these 6 observations. So sum of all observations divided by number of observations 6. Okay, so just इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भेज दिए हम लोगों ने, काउंट कर दिए, इसका एडिशन कर दिए, 35 को ये साइड पे लेके आए तो कितना बचा 19 बचा. सो ये जो हमको इक्वेशन मिल गया ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. ओके, सो नाउ टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम. Yes, write down next problem. The numbers are arranged in the descending orders. Write down next question. The numbers are arranged in the descending order नंबर्स दिए वाले हम लोगों को 108 94 88 82 कमा x प्लस 7 x minus 7 60 58 42 and last one is the 39. Okay, if continue the problem, if the median is 73 comma the value of x is options भी है आपके पास
First option is 72, second 73, next third 76, and last one is 75. So before solving this example, please see what is given. Okay, so what is given here? The numbers are arranged in the descending orders. हमारे पास नंबर्स दिए वाले, कितना नंबर्स है देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास कितने नंबर है? 10 नंबर है। और कैसे ऑर्डर्स में? ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। कैसा है ऑर्डर उसका? डिसेंडिंग ऑर्डर है। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सब नंबर्स दिए वाले हैं आप लोगों के पास। और ऊपर से क्या दिए वाले हैं आपको? इफ द मीडियन इज 73, मीडियन भी दिए वाले हैं आपको। और क्या फाइंड करना है? जस्ट वैल्यू ऑफ x. Okay, so see here so how to find the value of x? Okay, so what is first of all, for finding the before finding the value of x, what is mean by median? Okay, so median का क्या वैल्यू है, कैसे वैल्यू निकालते हैं हम लोग वो बोलो। so हम लोगों ने देखे लास्ट लेक्चर में मीडियन को दो टाइप से हमने डिफाइन किया था। ओके, सो फर्स्ट वन था ऑड नंबर के लिए। सो ऑड नंबर के लिए अगर मीडियन निकालने तो कैसे निकाले थे हम लोग? जस्ट मिडल वैल्यू। ओके, कैसे लिए थे मिडल वैल्यू? हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन है उससे हमने क्या किया था? असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया था। और असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद जो भी मिडल का टर्म है, इसका मतलब क्या है? n/2th टर्म। ऑड नंबर के लिए क्या लिया था हम लोगों ने? मीडियन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एट द प्लेस ऑफ n/2th टर्म। ओके, सो n डिवाइडेड बाय 2, नहीं n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। ओके, अगर हमारे पास ऑड नंबर रहता, अभी यहाँ पे 10 की जगह 9 होता, सो 9+1 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स कितना? 5th टर्म को हम लोग डायरेक्ट लेते थे और उसको क्या बोलते थे? ये है आपका मीडियन। ओके, सो ये हो गया क्लियर। अभी यहाँ पे देखो हमारे पास नंबर्स कैसे है? इवन नंबर है, तो ये फार्मूला तो यहाँ पे नहीं जमेगा। कौन सा फार्मूला नहीं जमेगा? n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, ये तो नहीं जमेगा। सो यहाँ पे कितने नंबर्स है? 10 है। इवन के लिए क्या फार्मूला था हमारे पास मीडियन का? हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। सो मीडियन ऑफ इवन नंबर क्या फार्मूला है हमारा? n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th term divided by 2. So what is the median for the even number? It is the average of n/2th term and n/2 plus 1th term. Okay, now put here all values. Okay, so how many numbers of observations are there? 10 number of observations there. Okay, so what is the value of n now? 10. So 10/2 is the 5th term plus 6th term divided by 2. Okay, so what is the definition? For here, for even number, the n/2th term, average of the n/2th term and n/2 plus 1th term after ranking is termed as a median. What is by ranking? We have to rank these all numbers in the ascending order. ओके, सीयर हम लोगों को यहाँ पे पहले से ही डिसेंडिंग ऑर्डर में तो दिया वाला है। ओके, सो हमको क्या करना है? खाली मीडियन का वैल्यू निकालना है। ओके, सो देखो अगर हम लोग ये जो ऑर्डर है डिसेंडिंग में है, तो डेफिनेटली यहाँ से हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे तो देखो असेंडिंग में है। देखो यहाँ पे 39 के बाद 42, फिर बाद में 58, बाद में 60, बढ़ते ही जा रहा है, बाद में 82, 88, 94, 108। ओके, डेफिनेटली अगर हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये कैसे जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ से ऑब्जर्वेशंस काउंट करते हैं, हमको कौन से नंबर का ऑब्जर्वेशन होना? 5th नंबर एंड 6th नंबर। ओके, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये बन जाएगा हमारा 5th नंबर का ऑब्जर्वेशन और ये बन जाएगा हमारा 6th नंबर का ऑब्जर्वेशन। सो ओके, सो अगर आप लोग को राइट करना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं यार। ओके, ये फिर से एक बार नंबर्स लिखो। द ऑल ऑब्जर्वेशंस आर रैंक इन द असेंडिंग ऑर्डर बोल दो और यहाँ से उल्टा लिख दो इसको, 39 बाद में 42, बाद में 58, 60 और ये सब यहाँ तक 108 तक लिख दो। ओके, सो आई विल पुट हियर डायरेक्टली। ओके, सो व्हाट इज द 5th टर्म? x-7, ये हो गया हमारा 5th टर्म, ये प्लस एज इट इज रहेगा। व्हाट इज 6th टर्म? x plus 7. So right here x plus 7 divided by
2. What is 2? 2 is the average of these two observations, okay, at the place of 5th and 6th term. So ये क्या है हमारा median है. So see here, we have to add these four quantities. See here, -7 plus 7 will get cancelled. Okay, what is 7 minus 7? 0, and this x plus x is 2x. Okay, so write here simply 2x divided by 2. So 2x divided by 2. So see here, 2 will get cancelled. So what is the value of median? See here, the value of median is given 73. So at the place of medians, write the value as a 73. So here also 73. So what is remaining here? X, and यहाँ पे median का वैल्यू क्या था? 73 है. So कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट. ओके, कैसे कैलकुलेट किया एक बार देखिए. हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस थे और अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्होंने ऑलरेडी दिए थे हम लोगों को. ओके, अगर डेफिनेशन के हिसाब से चलना है हम लोगों को तो मीडियन क्या है? n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म का अगर एवरेज निकालेंगे हम लोग आफ्टर रैंक इन द असेंडिंग ऑर्डर. ओके, सो सी हियर ये n/2 th टर्म बोले तो 10 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 करते 5th टर्म और 6th टर्म आ रहा. ओके, सो 5th और 6th का टर्म अगर हम असेंडिंग ऑर्डर से लेंगे तो ये 5th बन जाएगा, ये 6th बन जाएगा. हम दोनों का एवरेज लिए वाले तो ये हो गया आपका मीडियन का डेफिनेशन. और ऑलरेडी आपको मीडियन दिया वाला है 73. सो यहाँ से 7 7 कैंसिल हो गया. x प्लस s 2x डिवाइडेड बाई 2 2 2 अगेन इट विल कैंसल. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 73. सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट. ओके, सो ऑल ऑफ यू गॉट दिस प्रॉब्लम. नाउ टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम. If the mean of x and 1 by x, what is if the mean of x and 1 by x is m, comma the mean of x cube plus 1 by x cube is the mean of x cube plus 1 by x cube is. ऑप्शंस भी दिए वाले आपको. फर्स्ट ऑप्शन है m square minus of 3 divided by 2. सेकेंड ऑप्शन है m 4m square minus 3. थर्ड ऑप्शन है m cube and last one is m cube plus 3. ओके, सो देखो एक बार प्रॉब्लम क्या दिया वाला है आपको. सो सी द न्यूमेरिकल. व्हाट इज गिवन? इफ द मीन ऑफ, क्या दिया वाला है आपको? इफ द मीन ऑफ x एंड 1 by x इज m. अगर ये दो ऑब्जर्वेशन का अगर हम लोग मीन निकालते हैं तो कितना दिया वाला है आपको? मीन m दिया वाला है, कॉमा द मीन ऑफ इसका दिया वाला है आपको, और क्या पूछा वाला है? एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मीन पूछा वाला है आपको. ओके, और ऑप्शन भी दिए वाले, राइट है. सो चलो जो दिया वाला है उसके ऊपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले. ओके, दिखने में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है लेकिन देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है. ओके, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. सी हियर, सो व्हाट इज गिवन? जो दिया वाला है उतना हम लोग पहले लिखते हैं. देखो क्या दिया वाला है? द मीन ऑफ, मीन किसका दिया वाला है आपको? दो ऑब्जर्वेशन का है, x एंड 1 by x. ओके, सो इसका पहले हम लोग निकालेंगे. फिर से मीन इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. कितने ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास? 2 ही है. ओके, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. कितने हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? 2 है. ओके, सो क्या दिया वाला है मीन हमको? m दिया वाला है. द मीन ऑफ x एंड 1 by x इज m. ओके, दोनों का मीन कितना दिया वाला है हमको? m दिया वाला है. सो ये हमको पहला इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ से. क्या है? x प्लस 1 by x इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है
सो इसको न्यूमरेटर में इधर लेके जाएंगे, वो साइड पे लेके गए तो क्या होगा, ये डिवाइडेशन का ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और ये बन गया हमारा 2m। ओके, सो सी हियर इतने से हमारा कुछ होने वाला है क्या, नहीं है। हमको क्या निकालने का है, द मीन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ओके, चलो इसको एटलीस्ट हम लोग स्क्वायर में लेके जाते हैं। कैसे लेके जाएंगे, देखो अगर हम लोग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, अगर ये दोनों साइड से भी हम लोग स्क्वायर करेंगे सो देखेंगे कुछ हाथ में लगता है कि हमारे, देखो कैसे स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग इसका, दोनों तरफ से अगर स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग सो x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का स्क्वायर हो गया ये। ओके, सो x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का स्क्वायर। ओके, सो कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगा, हियर a प्लस b होल स्क्वायर। सो व्हाट इज द आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं यहाँ। ओके, सो a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab। सो व्हाट इज द a plus b whole square, a square plus b square plus 2 times of ab. So now expand these terms by using this identity. Okay, so what is a square, that is x square, plus what is b square, 1/x square plus 2 times of ab. So 2 into a is the x and b is the 1/x is equal to, what is the square of 2m square, 2 का स्क्वायर बन गया 4 और m का स्क्वायर बन गया m square. Okay, now see here this x will get cancelled. Okay, so what is remaining here, x square plus 1/x square is equal to 4m square. ये जो 2 है यहाँ पे प्लस में है, मैं उधर लेके जाता उसको, क्या बन गया, ये 2 माइनस में चला गया। राइट है, ये समझ में आएगा, बोलो मुझे क्या कर दिया हम लोगों ने, ये जो 2 था ओके, सो ये 2 क्या गए वो साइड पे लेके गए, सो ये प्लस में था इधर माइनस में चला गया और 2 के साथ जो प्रोडक्ट में x और 1/x था वो दोनों कैंसिल होके क्या बन गया था, 1 बन गया था। ओके, सो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। ओके, जो दिया वाला था हम लोगों के पास उसके ऊपर से इतना मिल गया हम लोगों को। अभी देखेंगे हमको निकालना क्या है, क्या निकालने का है हमको, द मीन ऑफ एक्स क्यूब, सॉरी यार प्लस की जगह कॉमा ले लिए, द मीन ऑफ एक्स क्यूब एंड 1/x क्यूब, कॉमा लीजिए नहीं तो एंड डाल दिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, द मीन ऑफ एक्स क्यूब एंड 1/x क्यूब। ओके, सो सी हियर अगेन व्हाट इज द मीन, हाउ टू कैलकुलेट द मीन, the mean is again the sum of all observations divided by number of observations. Okay, so see here the sum of all observations, कितने observation है हमारे पास, 2 ही है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 2. ओके, see here क्या मिलता है क्या इसके ऊपर से देखेंगे। चलो हमको जो दिया वाला था यहाँ से तो हम लोग इतना लाए, अभी है क्या हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर है और 1/x स्क्वायर है। ओके, सो हम लोगों को क्या करना है अभी इसके ऊपर से इसको कन्वर्ट करना है। अभी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको अगर लिखना है हम लोगों को, सो यहाँ पे देखिए साइड में लिखता मैं a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। अगर हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे तो इसको सॉल्व करके देखेंगे ये तो बन गया x माइनस कट गया, इसका क्या आंसर आता देखेंगे हम लोग। सो ये तो बन गया, वह x कैंसिल हो गया, यहाँ पे -1 बचेगा। अगर इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो क्या होगा देखेंगे, हमको अगर ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब तो हम लोग ये इजीली ले सकते हैं। ओके, सो सी हियर देखो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ओके, माइनस ऑफ ax और 1/x चला गया। ओके, उसकी जगह क्या है -1 है, सो x से -1 को मल्टीप्लाई किए -x प्लस अगेन देखो यहाँ पे x इंटू 1/x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों भी प्लस में, एक x कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/x। अगर ये 1/x से अभी हम पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो प्लस ये 1/x और ये एक्स स्क्वायर क्या बचेगा अगेन 1 बाय ओनली x इज रिमेनिंग हियर
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे हम लोग। सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, एक एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स बचेगा। ओके, सो सीयर तो इसे ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया। अभी ये बचा वाला क्या है, 1/x इंटू -1, सो -1/x बचेगा। और ये अगेन बचा वाला लास्ट वाला टर्म है, सो 1/x इंटू 1/x स्क्वायर, ये दोनों भी प्लस में है। सो ये 1/1 एज इट इज x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बचेगा। देखो यहाँ पे ये प्लस -x प्लस x, ये प्लस 1/x -1/x, क्या रिमेनिंग है हमारे पास, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, राइट है। सो यहाँ पे क्या था हमारे पास, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। सो इसके जगह हम लोग रिप्लेस क्या कर सकते हैं, 1x प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, ये लोग हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, सो इसको क्या करें हम लोग, जस्ट यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब को क्या किया हम लोगों ने, एक्सपांड कर दिया है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यू कैन राइट हियर x प्लस 1/x, इसकी जगह हम लोग इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। हम लोगों को अभी देखा यहाँ पे इसका वैल्यू अगर हम लोग प्रोडक्ट लेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी इंटू ऑल देन सेकंड इंटू ऑल, तो हमको क्या मिल रहा, रिटर्न से यही मिल रहा। सो हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं। अभी क्या लिया हम लोगों ने, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जगह x प्लस 1/x एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए बी बोले तो ए x इंटू 1/x प्लस ये सेकेंड का स्क्वायर 1/x स्क्वायर। अभी यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो, डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज रहेगा यहाँ पे। चलो देखो यहाँ पे थोड़ा सा अभी क्या करना था हम लोगों को, जस्ट ये वैल्यूज फाइंड करना है ना, मीन निकालना है इसका। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हो हमारा काम हो जाएगा। देखो अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 में से हमको क्या मिलेगा, x प्लस 1/x का वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे लाके रख दो। और यहाँ पे इक्वेशन 2 में से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 1/x स्क्वायर है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 2 से मिलेगा और x प्लस 1/x का वैल्यू इक्वेशन 1 से मिलेगा। इसके लिए तो हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया ना। इसको कन्वर्ट करने का क्या हमारा मोटिव था कि ये हमको इजी पैटर्न में मिल जाना और यहाँ से हमको इजीली हमको वैल्यू मिलके हम लोग मीन फाइंड करना। ओके, सो देखो अभी, और ये तो टर्म है वो क्या होगा, x और 1/x 1 बन जाएगा, उसका तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, सो सी हियर आई विल पुट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम लोग इसका मीन का वैल्यू क्या लिख सकते हैं अभी बोलो। चलो मीन इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में से x प्लस 1/x का वैल्यू क्या मिल गया हमको, 2m, अभी इनटू प्रोडक्ट में है ये। ओके, सो हम लोग भी प्रोडक्ट में लेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 से क्या मिल रहा है हमको, 4m स्क्वायर माइनस 2 किसका वैल्यू है ये क्वांटिटी प्लस ये क्वांटिटी। अभी बचा वाला क्या है, माइनस में x डिवाइडेड बाय 1/x, x मल्टीप्लाई बाय 1/x, तो x कैंसिल हो गया, कितना बचा वहां पे, माइनस ऑफ 1, और ये डिनोमिनेटर में क्या है 2 एज इट इज। देखो ये पूरे को ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में है और इसके मल्टीप्लिकेशन में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, सो आई विल कैंसिल दिस 2 विल गेट कैंसल। सो व्हाट इज रिमेनिंग हियर, मीन इज इक्वल टू, यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के क्या बचा वाला है, यम बचा वाला है, सो ब्रैकेट के बाहर यम और अंदर क्या बचा वाला देखो, 4m स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, सो ये 2 तो चला गया इसके साथ। अभी ये जो बचा वाला ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। सो ऑप्शन में देखो हमारा आंसर आया क्या आंसर है हमारा, मीन इज इक्वल टू m in bracket 4m square minus 3. So see in the options, okay, see here option number second, m in bracket 4m square minus 3 है क्या, दोनों भी सेम। सो अगेन हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या है, एकदम राइट है। ओके, सो एक बार रिपीट करते हैं क्या कैसे फाइंड किया हम लोगों ने ये। चलो देखो पहले क्वेश्चन देखो, हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। व्हाट इज क्वेश्चन, if the mean of x and 1/x
इज यम। हम लोगों को क्या दिया था, x एंड 1/x का मीन कितना दिया था, यम दिया था। तो हमने एज इट इज उठाया, मीन के फार्मूले में रख दिया, x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू यम दिया वाला था। सो इसको हमने क्या किया, ये 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, तो डिवाइडेशन का इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में चला गया। ओके, सो यहाँ मिल गया हमको 2m। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2m। ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट सेकंड में क्या था हमारे को, हमको क्या निकालना था, द मीन ऑफ x क्यूब एंड 1/x क्यूब निकालना था। ओके, सो अगर उसका मीन निकालना है तो डेफिनेटली हमको क्या करना था, उसको एक्सपांड करना था। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को अगर कैसे एक्सपांड करेंगे हम लोग, ऐसा कर सकते हैं, x प्लस 1/x, ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, क्यूब छोड़ के हम लोग क्या किए, उसका खाली एक्सपांशन कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म, ओके, उसका स्क्वायर कर दिए। ओके, सो देखो यहाँ पे a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसको क्या किया हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या कर हमने एक्सपांड कर दिया। ओके, सो उसका ये एक्सपांशन हम लोग क्या कर दिए, इसके एक्सपांशन में क्या मिल रहा है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिल रहा है, और वो कहाँ से फाइंड किया हम लोगों ने, इसका स्क्वायर करके। तो देखो अगर ये दोनों भी साइड से इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या कांस्टेंट है, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तो ये साइड का भी स्क्वायर बन जाएगा। सो ये साइड का स्क्वायर हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज किए, अगेन ये आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो हियर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a एंड इंटू b। ओके, सो यहाँ से हमको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, या इसको इक्वेशन नंबर 2 रख दिया हम लोगों ने। और सिंपल हम लोगों को क्या पूछा था, द मीन ऑफ x क्यूब एंड 1/x क्यूब पूछा था हम लोगों को। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किए, द मीन ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब डिवाइडेड बाय 2 हो गया। दोनों का मीन निकालना है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये दोनों का अगर सम कर दिया हम लोग, और कितना डिवाइडेशन में 2 क्यों लिए, क्योंकि 2 ही ऑब्जर्वेशन थे हमारे पास। ओके, सो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को हम लोग क्या किए, वो आइडेंटिटी से एक्सपांड कर दिए। सो इसको एक्सपांड कर दिए, उसके बाद में इक्वेशन 1 एंड 2 में से 1 में से x प्लस 1/x का वैल्यू लाके रख दिए, और 2 में से क्या लाए हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का ही वैल्यू रख दिया। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, और x कैंसिल हो गया, कितना बचा, -1। सो -1 हम लोगों ने यहाँ पे एज इट इज ले लिया, दिख रहा है सबको, ये -1 है, एज इट इज रख दिया। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू ये था, 4m स्क्वायर माइनस 2 कहाँ से आया था, इक्वेशन नंबर 2 से आया था, ये इक्वेशन नंबर 1 से आया था, ये 2 कैंसिल हो गया, जो बचा वाला टर्म है वो क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया था। सो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। ओके, समझ में आया क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ओके, चलो ये हो गया आपका क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ विल टेक द नेक्स्ट एग्जांपल।